اب آئیے سرزمین تلنگانہ کا وہ معتبر لہجہ آپ کے روبرو ہونے جا رہا ہے، وہ لہجہ جسے پورے ہندوستان کی ادبی دنیا میں اشفاق اصفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نظام آباد سے تعلق رکھنے والے بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی پورا سر لب و لہجے کے بہت ہی صاحب طرز شاعر جناب اشفاق اصفی صاحب آپ کے روبرو۔ استقبال کیجئے اپنے شاعر کا۔ السلام علیکم۔ حاضرین گرامی، بہت ہی خوبصورت مشاعرہ آپ سن رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ مصرعے موضوعاتی جو اس مشاعرے سے متعلق ہیں، کچھ شاعری وہ بھی ہوگی جو آپ سے اور مجھ سے تقاضا کرتی ہے، اور کچھ اشعار وہ بھی ہوں گے جو ہمارے صدر مشاعرہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ تک پہنچے گی۔ 4 مصرعے پیش کرتا ہوں کہ وہ معزز ہیں، شرافت کی سند رکھتے ہیں۔ واہ، وہ معزز ہیں، شرافت کی سند رکھتے ہیں، جان دے کر بھی شہادت کی سند رکھتے ہیں۔ اے وطن، ہم نے بنایا ہے یہاں تاج محل، ہم زمانے میں محبت کی سند رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، پھر پڑھیے گا۔ ضرور پڑھوں گا میں۔ شعر پسند آئے تو زوردار تالیوں سے آپ اس کا استقبال کریں شعر کا، تاکہ مجھے اگلے شعر پڑھنے میں سہولت ہو۔ وہ معزز ہیں، شرافت کی سند رکھتے ہیں، جان دے کر بھی شہادت کی سند رکھتے ہیں۔ اے وطن، ہم نے بنایا ہے یہاں تاج محل، ہم زمانے میں محبت کی سند رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہم زمانے میں محبت کی سند رکھتے ہیں۔ 4 مصرعے اور عرض کرتا ہوں کہ پھر کوئی انقلاب آئے گا، پھر کوئی انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، آہ مظلوم سے بچے رہیو ورنہ رب کا عذاب آئے گا۔ واہ، منفرد اپنی شان رکھتے ہیں، منفرد اپنی شان رکھتے ہیں، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے! منفرد اپنی شان رکھتے ہیں، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، آزما کر ہمیں بھی دیکھو تو دل میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ واہ، دل میں ہندوستان رکھتے ہیں، کیا کہنے! منفرد اپنی شان رکھتے ہیں، دل میں ہندوستان، منفرد اپنی شان رکھتے ہیں، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، آزما کر ہمیں بھی دیکھو تو ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں۔ دل میں ہندوستان دوستو، ہم دل میں ہندوستان رکھتے ہیں، آزما کر ہمیں بھی دیکھو تو دل میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ کئی واقعات سے حیدرآباد شہر گزرتا ہے، اور ایک موقع ایسا تھا کہ بہت ہی کرب کے عالم میں شہر کی سانسیں تھیں۔ وہ واقعہ یاد کیجئے آپ، جس وقت یہاں کے حالات اکبر صاحب کی صحت کی خرابی کی وجہ سے بنے تھے اور آپ کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ 4 مصرعے میں نے اس وقت کہے تھے، اور 4 مصرعے آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اور وہ کسی حوالے سے حیدرآباد کے مختلف جلسوں میں پڑھے گئے، سنائے گئے، لیکن چونکہ میرے اشعار ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں۔ شعر سنیے، مطلب سنیے گا۔ وہ کون تھا کہ جو موجے بلا سے جیت گیا؟ واہ، وہ کون تھا کہ جو موجے بلا سے جیت گیا؟ دوا سے ہار کے بیٹھا دعا سے جیت گیا۔ واہ 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 واہ، وہ کون تھا کہ جو موجے بلا سے جیت گیا؟ دوا سے ہار کے بیٹھا دعا سے جیت گیا۔ وہ بجھ نہ جائے کہیں سب کو بدگمانی تھی، وہ بجھ نہ جائے کہیں سب کو بدگمانی تھی، وہی چراغ اکیلا ہوا سے جیت گیا۔ کیا بات ہے! یہ بجھ نہ جائے کہیں سب کو بدگمانی تھی، وہی چراغ اکیلا ہوا سے جیت گیا، وہی چراغ اکیلا ہوا سے جیت گیا۔ کچھ شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں آپ جہاں جہاں سے یاد آ رہے ہیں۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ
महारत फन में जिसको है, महारत फन में जिसको है, रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है, अदाकारी नहीं करता। वाह। महारत फन में जिसको है, रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है, अदाकारी नहीं करता। तू शमशीरें इकट्ठा कर, सरों की भीड़ भी ले आ, मुजाहिद हौसला रखता है, तैयारी नहीं करता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। महारत फन में जिसको है, रियाकारी नहीं करता। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। महारत फन में जिसको है, रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है, अदाकारी नहीं करता। तू शमशीरें इकट्ठा कर, सरों की भीड़ भी ले आ, मुजाहिद हौसला रखता है, तैयारी नहीं करता। मुजाहिद हौसला रखता है, तैयारी नहीं करता। ये मतलब पेश कर रहा हूं। देखें आप, सदर मुशायरा मोहतरम बैरिस्टर साहब के हवाले से ये मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। देखें, आपके खेल शतरंज का है। तमाम शोरा की तवज्जो चाहता हूं। खेल शतरंज का है, इसमें तमाशा कम है। वाह। देखें साहब, खेल शतरंज का है, खेल शतरंज का है, इसमें तमाशा कम है। मात देना है मगर चाल बताना कम है। वाह। खेल शतरंज का है, इसमें तमाशा कम है। मात देना है मगर चाल बताना कम है। मात देना है मगर चाल बताना कम है। शेर देखें कि जल्दबाजी में तू दुश्मन पे ये हमला मत कर। जल्दबाजी में तू दुश्मन पे ये हमला मत कर, सब्र कर ठहर जरा, तेरा निशाना कम है। सब्र कर ठहर जरा, तेरा निशाना कम है। यूं ही मकबूल नहीं है वो जमाने भर में, यूं ही मकबूल नहीं है वो जमाने भर में। बांटना खूब है, एहसान जताना कम है। बांटना खूब है, एहसान जताना कम है। चंद शेर और पढ़ता हूं। देखें, आपके लोग जो पैकर ईमान बने रहते हैं। वाह। लोग जो पैकर ईमान बने रहते हैं, कुछ ना होते हुए सुल्तान बने रहते हैं। वाह। लोग जो पैकर ईमान बने रहते हैं, कुछ ना होते हुए सुल्तान बने रहते हैं। फैसलों में न दिखाओ कभी जानिबदारी। वाह। फैसलों में न दिखाओ कभी जानिबदारी, फैसले सदियों का उन्वान बने रहते हैं। वाह 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 वाह। फैसलों में न दिखाओ कभी जानिबदारी, फैसले सदियों का उन्वान बने रहते हैं। चंद मिसरे और हाजिर करता हूं। देखिए, आप सुनाऊं के बस करूं? सुनाना है तो जोरदार तालियां एक मर्तबा इस मुशायरे के मुंतजिमीन के लिए। देखें, आप मतलब पेश कर रहा हूं। जब कलम उंगलियों में रहते हैं, जब कलम उंगलियों में रहते हैं, वाह, हम तेरी सुर्खियों में रहते हैं। मैं फरमाइश करने वाला था। बहुत खूब। जब कलम उंगलियों में रहते हैं, हम तेरी सुर्खियों में रहते हैं। हम तेरी सुर्खियों में रहते हैं। हाथियों की मिसाल मत देना, हाथियों की मिसाल मत देना, हौसले चूंटियों में रहते हैं। जब कलम उंगलियों में रहते हैं, हम तेरी सुर्खियों में रहते हैं। हाथियों की मिसाल मत देना, हौसले चूंटियों में रहते हैं। वाह। हौसले चूंटियों में रहते हैं। है जुबां पर तो कौम की सेवा, है जुबां पर तो कौम की सेवा, दिल मगर कुर्सियों में रहते हैं। वाह वाह वाह। है जुबां पर तो कौम की सेवा, दिल मगर कुर्सियों में रहते हैं। अब दरिंदे कहां हैं जंगल में, अब दरिंदे कहां हैं जंगल में, आजकल बस्तियों में रहते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब दरिंदे कहां हैं जंगल में, आजकल बस्तियों में रहते हैं। अब दरिंदे कहां हैं जंगल में, आजकल बस्तियों में रहते हैं। चलते चलते चंद मिसरे और पढ़ के इजाजत चाहूंगा। मतलब यूं है कि मेरी पसंदीदा गजल के चंद शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि मेरी नजर को मेरी आंखों को वो रसाई दे। मतलब देखें आप,
मेरी आंखों को वो रसाई दे, मेरी आंखों को वो रसाई दे, जिस तरफ देखूं तू दिखाई दे। आहा, मतलब अच्छा था, अगर पसंद आया हो तो एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाएं आप। मैं अच्छी गजल सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी आंखों को वो रसाई दे, जिस तरफ देखूं तू दिखाई दे, लफ्ज लिखूं तो रोशनी फैले। क्या कहने, लफ्ज लिखूं तो रोशनी फैले, तू कलम को वो रोशनाई दे। आहा, सुभान अल्लाह। लफ्ज लिखूं तो रोशनी फैले, तू कलम को वो रोशनाई दे, तू कलम को वो रोशनाई दे, तू कलम को वो रोशनाई दे, मेरी आंखों को वो रसाई दे, जिस तरफ देखूं तू दिखाई दे। तख्त वाले करें अदब जिसका, तख्त वाले करें अदब जिसका, मेरी किस्मत में वो चटाई दे। वाह तख्त वाले करें अदब जिसका, वाह वाह वाह। मेरी किस्मत में वो चटाई दे। मुझको नमकीन है पसंद मगर, मेरे बच्चों को तू मिठाई दे। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मुझको नमकीन है पसंद मगर, मेरे बच्चों को तू मिठाई दे। बड़ा मासूम शेर है। मुझको नमकीन है पसंद मगर, मेरे बच्चों को तू मिठाई दे। आखिरी में एक मतला के अपने असलाफ की तारीख खंगाली जाए। जिस जगह बैठे हुए हैं आप, इससे अपनी असलाफ की तारीख वाबस्ता है। उस हवाले से दो शेर पढ़ के मैं इजाजत चाहूंगा। वाह। अपने असलाफ की तारीख खंगाली जाए, अपने असलाफ की तारीख खंगाली जाए, जिंदगी जीने की तरकीब निकाली जाए। वाह। अपने असलाफ की तारीख खंगाली जाए, जिंदगी जीने की तरकीब निकाली जाए। एक आंसू से जहन्नुम को बुझा सकते हैं। वाह। एक आंसू से जहन्नुम को बुझा सकते हैं, पहले आंखों में नदामत तो बसा ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूं कि आपने बहुत ही कीमती वक्त में मेरा साथ दिया और मुझे बर्दाश्त किया। आपकी मोहब्बतें और हमारा साथ सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। आइए हाज़िरीन गिरामी, मैं एक जिम्मेदारी के तौर पर इस मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए ये बात बताता चलूं कि हैदराबाद के कुल हिंद मुशायरे या हैदराबाद के अखबारात या हैदराबाद की अदबी महफिलें और हैदराबाद के नसरी काम का जो हवाला है, जिन चीज़ों के हवाले से हम हैदराबाद की गुफ्तगू करते हैं, जब गुफ्तगू करते हैं तो एक शबी, एक चेहरा, एक शफ़ाफ सा चेहरा हमारे सामने उभर के आता है। उस शफ़ाफ चेहरे का नाम आप जानते हैं, मोहतरम सरदार सलीम है, जो आज के इस खूबसूरत मुशायरे के नाज़िम मुशायरा है। मैं चाहता हूं कि उस शायर का उसी तरह इस्तकबाल हो जैसा कि उसने तमाम शोरा का इस्तकबाल कराया। आप ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल फरमाएं। मैं दो मिसरों के साथ उन्हें आवाज़ देता हूं।